اردو دنیا کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج آپ لوگوں کے لیے سیکرٹ سروس مشن کا قسط نمبر 9 حاضر ہے۔ براؤن نے کار اس قلعہ نما عمارت سے کچھ دور سڑک کے پار ایک بند گلی کے اندر روکی اور خود نیچے اتر کر وہ ایک کیپے میں داخل ہو گیا۔ اس کیپے کا فرنٹ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا، اس لیے اندر بیٹھ کر آسانی سے اس قلعہ نما عمارت کا مکمل طور پر جائزہ لیا جا سکتا تھا۔ اور پھر اسے شیشے کے ساتھ ہی ایک خالی میز بھی آسانی سے مل گئی۔ ویسے بھی کیپے میں زیادہ تر رش نہیں تھا۔ براؤن ابھی کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک ویٹر مینیو لیے پہنچ گیا۔ صرف کوک لے آؤ، براؤن نے ویٹر سے کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ اور چند لمحوں بعد اس نے کوک کی ایک بوتل لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ براؤن نے اطمینان سے کوک پینے لگا، لیکن اس کی نظر اس قلعہ نما عمارت کے پاٹک پر ہی لگی ہوئی تھی جو بند تھا۔ لیکن ابھی اس نے کوک ختم کی ہی تھی کہ اسے پاٹک کا ایک پٹ اندر سے کھلتا ہوا دکھائی دیا، تو وہ بے اختیار چونک پڑا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ اس نے دونوں آدھ کھلے پٹوں کے درمیان مار کر کے ایک ساتھی کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد 8 افراد بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے سڑک کراس کر کے اس پاٹک کی طرف بڑھ گئے۔ ایک کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا، یہ مارکر تھا اس کا نمبر 2، اور براؤن اس بریف کیس میں بند مشینری کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس مشینری سے نکلنے والے مخصوص ایٹمک ریز ہر قسم کے سائنسی آلات کی کارکردگی کو یک لخت صفر کر دیتی تھی، اور ان ریز کے اثرات 3 گھنٹے تک رہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 3 گھنٹوں تک اس عمارت میں موجود ہر وہ چیز جسے بیٹری یا بجلی سے چلایا جا رہا ہو ساکت ہو جائے گی، اور چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے 3 گھنٹوں تک وہ حرکت نہ کر سکتی تھی۔ مارکر نے اپنے ساتھیوں سمیت اندر داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی پاٹک کا کھلا ہوا پٹ بھی بند ہو گیا۔ اس لمحے ویٹر دوبارہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے اس دوسری لاک کو لانے کے لیے کہا اور اپنی توجہ دوبارہ پاٹک کی طرف مبذول کر دی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اصل نازک مرحلہ آ گیا ہے۔ اگر جنرل بریکیج مشین آن ہونے کا موقع ہل گیا تو پھر یہ قلعہ نما عمارت آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ انہیں اس کے سارے ساتھی بھی موت کے گھاٹ اتر سکتے تھے، لیکن جب کافی دیر تک اندر سے فائرنگ کی آوازیں نہ آئی اور نہ ہی اس کے ساتھی باہر نکلے تو اس کے ذہن عجیب سی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اندر آخر کیا ہو رہا ہے۔ ابھی وہ اسی بے چینی میں مبتلا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر ہلکی سی ضربیں لگنے لگی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور کیپے کے باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ضربیں بتا رہی تھی کہ مارکر کی طرف سے ٹرانسمیٹر کا کالا ہی ہے۔ یہ اسپیشل ٹرانسمیٹر تھا جو اس مشین کے بعد آسانی سے استعمال کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس ٹرانسمیٹر میں کوئی بیٹری استعمال نہیں کی جاتی تھی۔ اور اس میں پرانے زمانے کی گھڑیوں کی طرح چابی بھری جاتی ہے اور اس طرح یہ ٹرانسمیٹر آن ہو جاتا تھا۔ باتھ روم میں داخل ہو کر براؤن نے رسٹ واچ کا وینڈ بٹن آن کیا اور پھر اسے مخصوص انداز میں دبا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو مارکر کالنگ باس، اوور مارکر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یس براؤن اٹینڈنگ اوور۔ براؤن نے گھڑی کو منہ کے قریب لے آتے ہوئے کہا، بس ہم نے ہیڈ کوارٹر کو کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہاں موجود ایک آدمی کو ہم نے بے ہوش کر دیا ہے، لیکن باوجود بے پناہ تلاش کرنے کے یہاں سے کوئی فائل دستیاب نہیں ہو رہی۔ کہیں اس سر سلطان نے غلط جگہ تو نہیں بتائی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے پہلے کہیں اور شفٹ کر دیے گئے ہو، اوور مارکر نے کہا۔ اس آدمی سے پوچھا، اوور براؤن نے کہا، نہیں سر، ہم نے اپنے طور پر تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پوچھ گچھ میں ظاہر سے دیر لگے گی۔ اگر وہ واقعی پاک ایشیا سیکرٹ سروس کا چیف ہے تو پھر اس سے معلومات حاصل کرنا تو اور بھی مشکل ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ فائل فوراً مل جائے تاکہ اس کو ختم کر کے ہم یہاں سے نکل جائے۔ اوور مارکر نے جواب دیا، ہاں، اس عمارت میں زیادہ دیر ٹھہرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، ایک آدمی کے سوا اور کوئی آدمی موجود نہیں ہے۔ اوور براؤن نے پوچھا، نو سر، ساری عمارت خالی پڑی ہوئی ہے، اور ویسے بھی عمارت انتہائی عجیب و غریب ہے۔ ہمیں ہر لمحہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ابھی کسی طرف سے ہم پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑے۔
मेरा ख्याल है कि ये पहले कहीं तहखाने में होगी और अब जनरल रैंकेजरीज की वजह से तमाम सिस्टम अप हो चुका है और मज़ीद 6 घंटों तक किसी तरह ऑन भी नहीं हो सकता, और अगर वैसे ऑन भी कर लिया जाए तो हो सकता है हम भी फंस जाए। इसलिए मैंने आपको कॉल किया कि अब हम क्या करें। और मार्कर ने तेज लहजे में कहा, तुम्हारे खदशात दुरुस्त है, तुम ऐसा करो और इस बेहोश आदमी को उठाकर बाहर आ जाओ और उसे पॉइंट 3 पर पहुंचा दो। मैं वही आ जाता हूँ। इसके बाद हम इस पर इत्मीनान से तशद्दुद करके इससे इस इमारत की मुतल्लक तमाम तफसीली मालूमात हासिल कर लेंगे। मैं प्रोफेसर शार्टर को भी वही बुलाता, हो सकता है कि हमें इसकी ज़रूरत दोबारा पड़ जाए। इसके बाद हम किसी भी वक्त दोबारा रेड करके ये फाइल हासिल कर सकते हैं। और ब्राउन ने कहा, ये ठीक रहेगा बस। और दूसरी तरफ से मार्कर ने इस तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा जैसे बाहर आने का सुनकर इसके असाब पर इंतहाई खुशगवार असरात पड़े हो। और एंड ऑल, ब्राउन ने कहा, और फिर विंड बटन को खींचकर बंद कर दिया और बाथरूम से निकलकर दोबारा इसी कुर्सी पर आकर बैठ गया जहाँ वो पहले बैठा था। वो आखिरी लम्हे तक यही रहना चाहता था क्योंकि बहरहाल इसके साथी दुनिया के अपना तरीन सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में घुसे हुए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद फाटक दोबारा खुला और इसका एक साथी तेजी से बाहर आया और इधर उधर देखता हुआ सड़क पार करके इसकी नजर से गायब हो गया। ब्राउन ने हॉर्न बेंच में खामोश बैठा था कि चंद लम्हों बाद इसने सियाह रंग के एक कार को सड़क क्रॉस करके इस फाटक की तरफ मुड़ते देखा तो इसके चेहरे पर इत्मीनान के असर नमूदार हो गए। कार के फाटक के करीब पहुंचते फाटक खुल गया और कार अंदर चली गई और फाटक दोबारा बंद हो गया। और फिर थोड़ी ही देर बाद फाटक एक बार फिर खुला और एक सियाह रंग की कार बाहर आई और दाईं तरफ चली गई। फाटक के अंदर से बंद कर दिया गया और थोड़ी देर बाद इस इमारत को दाएं हाथ वाली गली से अपने दो साथी निकलते दिखाई दिए तो पूरी तरह मुतमईन हो गया। वो मार्कर की जहानत का ख्याल हो गया था कि इसने हर किस्म का शक खत्म करने के लिए फाटक को अंदर से बंद करा दिया था और साथियों को दीवार पार करके बाहर आने के लिए कहता था कि किसी को शक न पड़ सके कि अंदर कोई दाखिल हुआ था। इसने वेटर को बुलाकर बिल अदा किया और इत्मीनान से पड़ता हुआ कीपे से बाहर निकला और इस गली की तरफ मुड़ गया जहाँ इसकी कार मौजूद थी ताकि कार निकाल कर वो पहले रेम्बो क्लब जाए और वहाँ से प्रोफेसर शार्टन को हमरा लेकर पॉइंट 3 पर पहुंच जाए। मेमोरियल रोड वाली कोठी जहां से सर सुल्तान को बरामद किया गया था की निगरानी मुसलसल की जा रही थी। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर्स कोठी के इर्द गिर्द फैले हुए थे और सफदर भी सर सुल्तान की इन कोठी पर पहुंचाकर वापस पहुंच चुका था, लेकिन अभी तक कोई आदमी इस कोठी की तरफ न आया था। जूलिया इस कोठी के बिल्कुल सामने बनी हुई जनरल पार्किंग में अपनी कार में बैठी हुई थी। इसकी नजरें कोठी पर जमी थी और सफदर भी जो इसके पास पहुंचा था इधर उधर ऐसे टहलता रहा जैसे उसे किसी का इंतजार हो। मिस जूलिया इधर का तो कोई रुख ही नहीं कर रहा, अब क्या किया जाए। सफदर ने आखिर तंग आकर जूलिया के करीब आते हुए कहा, मैं खुद भी परेशान हूँ लेकिन अब्बास का हुक्म है कि इसकी मुसलसल निगरानी की जाए। जूलिया ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि मैं बास को रिपोर्ट देकर इसके मजीद हिदायत लूँ, शायद वो रिपोर्ट सुनकर कोई नई हिदायत दे दे। सफदर ने कहा, ठीक है। जवाबन इजाज़त देते हुए कहा, चूंकि करीब ही एक पब्लिक फोन बूथ मौजूद था इसलिए सफदर उधर ही फोन करने चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो 30 कदम उतारता वापस आया तो इस कैमरे की कैफियत देखकर जूलिया चौंक पड़ी क्योंकि सफदर के चेहरे पर खूब सी हैरत के तासरात थे जैसे उसे किसी बात का यकीन न आ रहा हो। मिस जूलिया, बास के फोन की घंटी ही नहीं बज रही, वो मेड है। सफदर ने करीब आकर कहा, क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, वो तो खसूसी फोन है, किसी सूरत भी डेड नहीं हो सकता वो। जूलिया ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा, इस बात का तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। आप ट्रांसमीटर पर बात करें, सफदर ने कहा और जूलिया ने सर हिलाते हुए कार का डैशबोर्ड के नीचे बटन ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ा दिया। लेकिन सफदर की बात सुनकर इसके ज़हन में धमाके से होने लगे थे। दानिश मंजिल की फोन डेड होने का तो उन्होंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। सफदर भी दूसरी तरफ से घूमकर साइड सीट पर बैठ गया। हेलो जूलिया कॉलिंग बास। और जूलिया ट्रांसमीटर ऑन करके बार बार टकरार दोहराना शुरू किया लेकिन दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी आ रही।
ओह, बास का खसूसी ट्रांसमीटर कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा। अगर बास मौजूद न हो तो ट्रांसमीटर ऑटोमेटिक कॉल रिसीव ऑन कर देता है ताकि कॉल रिकॉर्ड कर ली जाए, लेकिन यह तो बिल्कुल ही खामोश है। जूलिया पूरी तरह घबराए हुए लहजे में कहा, ओह मिस जूलिया, मेरे चिट्ठी हिस्स की सी भयानक खतरे का अलार्म बजा रही है। मेरा ख्याल है कि हमें फौरन दानिश मंजिल पहुंचना चाहिए। सफदर ने बुरी तरह होंठ काटते हुए कहा, क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, ओह मिस जूलिया, ये खामोशी बता रही है कि दानिश मंजिल में कोई गड़बड़ हो गई है, कोई नाकाबिल यकीन गड़बड़। सफदर ने सर झटकते हुए कहा, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? दानिश मंजिल में कैसे गड़बड़ हो सकती है? ये तुम क्या कह रहे हो? जूलिया को शायद तस्वुर में भी ये बात का यकीन नहीं आ रहा था। ओह, वाकई ऐसा ही तो नहीं हो सकता, लेकिन टेलीफोन और ट्रांसमीटर भी तो आज तक डेड नहीं हुए। ये भी तो सोचे, ऐसा है कि आप यही रुके, मैं अकेला जाता हूँ। सफदर ने बेचैन से लहजे में कहा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जूलिया ने एक लख्त फैसला कुन लहजे में कहा और दूसरे लम्हे इसने एक कार झटके से आगे बढ़ा दी। इसके चेहरे पर जलजले के आसार थे। यहाँ साथियों को तो इतला दे दे। सफदर ने कहा, नहीं, बाद में देखा जाएगा, मेरा तो दिल डूबने लगा है। जूलिया ने कहा और कार का एक एक्सीलेटर और ज्यादा दबाया। सफदर सर हिला कर रह गया। इसके अपने दिल में शदीद कदबद हो रही थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। और फिर थोड़ी देर बाद इनकी कार दानिश मंजिल के फाटक पर आ पहुंची। फाटक हस्बी दस्तूर बंद था। सफदर ने नीचे उतरकर कॉल बेल का बटन प्रेस किया और फिर उसे बार बार प्रेस करता गया, लेकिन अंदर से कोई अमल न हो रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कॉल बेल का इस बटन से कनेक्शन ही खत्म हो गया। जब काफी देर तक मुसलसल बटन प्रेस करने के बावजूद कोई रद्द-ए-अमल जाहिर न हुआ तो जूलिया भी कार से नीचे उतर आई। बास की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अब क्या करे? सफदर ने मुड़कर जूलिया से कहा, तुम बताओ, मेरा तो दिमाग ही मायूक हो रहा है। जूलिया ने बुरी तरह घबरा दी लहजे में कहा, मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि मुझे अब जबरदस्ती अंदर जाना होगा। सफदर ने होंठ बेचते हुए कहा, लेकिन अगर बास की ये मर्जी न हुई तो? जूलिया ने कहा, अगर ऐसा है तो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाते हुए बास हमें रोक लेगा। आप यही ठहरे, मैं साइड गली से अंदर जाता हूँ। सफदर ने कहा और फिर इससे पहले कि जूलिया कोई जवाब देती वो दौड़ता हुआ दाएं तरफ वाली गली की तरफ पलट गया। जूलिया खामोश खड़ी रही, लेकिन वो बज़ाहिर तो खामोश थी, लेकिन इसके अंदर जैसे पंखे से लगे हुए अजीब किस्म की बेचैनी इसके जिस्म में जा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद जूलिया को अंदर से फाटक खुलने की आवाज़ सुनाई दी तो वो बुरी तरह चौंक पड़ी, लेकिन दूसरे सफदर की आवाज़ सुनाई। अंदर खामोशी है, आप कार अंदर ले आए। सफदर ने फाटक खोलते हुए कहा और जूलिया जल्दी से कार में बैठी। फिर इसने कार स्टार्ट करके उसे अंदर बढ़ा दिया। सफदर ने कार अंदर जाने से फाटक बंद कर दिया। जूलिया के कार वही ले जाकर रुकी जहां वो पहले अपनी कार रोका करती थी। इस दौरान सफदर भी भागते हुए इसके करीब पहुंच गया। मुझे ये खामोशी गैर फितरी लग रही है, वरना मेरे इस तरह दीवार से कूदने पर यहाँ क्या हिफाजती सिस्टम हरकत में आ जाता। सफदर ने करीब जाकर तेज लहजे में कहा, तो फिर अब क्या किया जाए? मुझे तो मालूम नहीं कि यहाँ क्या सिलसिला है। मैं तो सिर्फ मीटिंग रूम और गेस्ट रूम को ही जानती हूँ।